we all vibe to the latest beats, but do we really remember the lyrics? Why do we always sing the old Purani Hindi songs in Antakshari, but never sings the real new ones and remixes? Are they really a creative revolution or just an easy shortcut? Let's be real with Simran to understand, is the music really evolving or losing its soul? So, we welcome you to Let's Be Real to check it out. Today we are joined by an amazing panel of music industry जिनकी पूरी लाइफ म्यूजिक के आसपास रिवॉल्व करती है. They are closely involved in this industry. So let's welcome RJ Shezi. He is from Red FM. इन्हें कौन नहीं जानता, and he is a very famous RJ from Bhopal. So welcome RJ. And then we have Vani Rao, a sensational Hindustani classical vocalist. She's a national artist और इन्होंने 20+ awards जीते हैं, जिसमें से 10+ तो सिर्फ national awards हैं. We are so happy to have you in our show. And then we have Ankit with us. Ankit Shukla is also from Red FM. He is a sound engineer and editor. और इसके अलावा इन्होंने बेस्ट जिंगल मेकिंग के अवार्ड्स भी लिए हैं. Then we have DJ Mohit with us. इन्होंने खेलो इंडिया के लिए भी डीजे प्ले किया है. इसके अलावा ये सनबर्ड्स भी करते हैं. And today he is here in Bhopal only for us. And then we have Rangila Brothers. They are the most amazing people. इन्होंने हमारी हेरिटेज को बहुत अच्छे से आज संभाला हुआ है. मुझे बहुत खुशी होती है जब यंग जनरेशन हमारे हेरिटेज के साथ अपना टैलेंट लेकर आती है. इनका अपना एक बैंड है which is a Sufi and a fusion band, और आज ये हमारे लिए यहाँ पर आए हैं. And then we have Sandeep sir. He is a multi-talented person. He's a singer, he's an artist, he's an actor, he's a writer, he's a composer, and the list goes on. And he is playing all these roles. He's carrying this hat for last 23 years. So thank you so much, sir, for coming here in this show. So let's start the show and discuss the session. From art to algorithm, is music still an emotion? Welcome, Vani. So earlier it was all about riyaz, so much of discipline. You have to root yourself into that industry जहाँ पे आप classical singing और सारे चीज़ों की learning लेते थे to be the musician or to be a singer. Okay, there was a very long journey of years and years. And आज हमारे साथ technology involved हो गई है. So what do you think? Is it water downing all these things or is it a new way of learning? Music's still about the riyaz and devotion and discipline. But मैं ये कहना चाहूँगी कि तरीका जो था सीखने का that has been somewhat different because पहले था जो शिव परंपरा जहाँ पे we are going to the guru और वहाँ पे हम उनके यहाँ साथ रह के we are learning so many things. But अब बहुत सारी चीज़ें change हो गई है. Just with one click हमने इंटरनेट पे हमने देखा कि हमें किससे सीखना है और हमने बस रियाज शुरू कर दिया. तो definitely easy हुआ है सीखने के लिए क्योंकि अब अलग से we don't have to go to some other place to learn. But फिर भी इसके pros and cons होते हैं सब चीज़ों के. तो इसके con ये अब बहुत सारे multiple लोग हो गए जिनसे हम सीखे, मतलब हमें नहीं पता कि किनसे सीखना है, क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से हम अपने गुरु को चूज करें. पहले बहुत लिमिटेड लोग थे और बहुत ज्यादा पक्का था कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम. बट अब इतने सारे लोग हो गए हैं, थोड़ा सा सीखा एंड हर कोई गुरु और टीचर बन रहा है. सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज राइजिंग फ्रॉम. तो वहाँ जाके मुश्किल हो जाती है कि हमें किससे सीखना है. So technology is somewhere कि you have to use with your brains. It's helping out also, but it at the same time it brings up with so much of chaos कि आपको किसके साथ learn up करना है और किसके साथ नहीं. Okay, thank you so much, man. So Sandeep sir, हमेशा से हमने देखा है कि स्टार्टिंग में पहले के टाइम पे लाइक आज से 10 साल पहले तक भी और 70s, 80s, 90s में म्यूजिक में लिरिक्स में बहुत ज़्यादा मीनिंग होते थे, एक स्ट्रक्चर होता था राइटिंग का. सो आज आपको क्या लग रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ मिसिंग है? आज हमारी लिरिक्स कहाँ फेड अप होते जा रहे हैं? आज हम सिर्फ एक बुक ड्रिवन एल्गोरिदम बेस्ड
म्यूजिक पर आ गए हैं। होप तो देखिए हुआ है सब, लेकिन ऐसा नहीं कि म्यूजिक खराब ही हो रहा है, Yeah. हम सिर्फ बुराई नहीं कर सकते, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। अभी भी हम जावेद साहब भी अभी भी लिख रहे हैं, गुलजार साहब लिख रहे हैं, तो गुलजार साहब पहले भी जैसा लिखते थे, अब छैया छैया देख लीजिए, या फिर अभी ओके जानू भी शायद रहमान साहब का म्यूजिक था, और Right. हम अगर फिर से क्रिएट, तो गुलजार साहब ने Right. काफी कुछ लिखा हुआ है, या आप इश्किया सुन लीजिए, या आप दिल से सुन लीजिए, अमिताभ भट्टाचार्य बहुत अच्छा लिख रहे हैं, स्वानंद केरी मीनिंगफुल लिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं Right. तो अभी भी अच्छा लिख रहे हैं। तो होप ड्रिवन सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे कि एज वी आर सिटिंग एट द लाउंज, Right. तो वक्त की जरूरत है, शाम को अगर कोई बैठा है, किसी को डांस फ्लोर पे जाना है, तो उस तरह के गाने भी होने हैं। और अगर आप रिमिक्सेस की बात करते हैं तो इसके नाम में ही रिमिक्स, तो जिससे ना सिर्फ बीट्स एंजॉय करनी है, तो रिमिक्स सुन रहा है, और नहीं तो वो ओरिजिनल पे जाता है, ओरिजिनल सुन रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है। तो इमोशन तो अभी भी है, इमोशंस अभी भी है, मतलब अभी इतना फेड अप नहीं हुआ है म्यूजिक। म्यूजिक यार हैज दैट सोल इनसाइड इट। ओके, सो अंकित, यू आर अ साउंड इंजीनियर एंड आज हम ये देख रहे हैं कि साउंड इंजीनियरिंग के साथ म्यूजिक में सब कुछ एक एनालॉग से डिजिटल की तरफ चेंज होते जा रहा है। सो व्हाट यू फील कि एक इमोशन या जो वार्म था म्यूजिक में वो कम हो रहा है? म्यूजिक परफेक्ट तो बहुत है, नो डाउट। अभी जैसे संदीप सर ने बताया कि लिरिक्स तो आज भी बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बीट्स और म्यूजिक के साथ उसे बस परफेक्ट बनाया जा रहा है और उसका फील जो है बिल्कुल फॉलो कर दिया जा रहा है। डू यू फील दैट वे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जैसे कि मानना है कि सब कुछ डिमांड पे निर्भर करता है। जैसे आज यूथ की बात करें तो अभी का हम 90s और आज की यूथ की बात करें, 90s में हम लोग कुमार सानू और उदित नारायण को ज़्यादा सुनते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम आज बात करें तो हम अगर यहाँ पर बैठे हैं और बात करें कि म्यूजिक चलाना हो तो हम लोग कुमार सानू की तरफ ज़्यादा जाएंगे। और किसी यूथ को, कॉलेज स्टूडेंट को अगर हम पकड़ेंगे कि आपको क्या सुनना पसंद, तो वो हनी सिंह और बादशाह की तरफ ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम लोग प्रोफेशन की तरफ जाएं कि हम लोग एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट हुए, उसका फ़ायदा ये है कि पुरानी रिकॉर्डिंग होती थी गाने की, उसमें हम लोग रीटेक में आपको जैसे किसी सिंगर ने या म्यूजिशियन ने कुछ गड़बड़ कर दी, आपको पूरा रीटेक लेना पड़ता था। आज ये है बिल्कुल बिल्कुल, आज ये है कि हम लोग थोड़ी सी गलती है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं वापस उसी टाइम। ऑल अबाउट टाइम, हमारा टाइम बच रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने वो जैसा आपने बताया कि जो ओरिजिनलिटी जो ख़त्म हो रही वो हुई नहीं है, आज भी जिंदा है। मतलब हम लोग मीनिंग की बात करें, जैसे हमने बताया कि लिरिक्स आज भी मीनिंगफुल लिखे जाते हैं, वैसे ही म्यूज़िक भी मतलब ऐसा बनाया जा रहा है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें, रॉकस्टार का गाना है, बट दैट्स अ डेकेड बैक। बिल्कुल दैट्स अ डेकेड बैक। मतलब हमारा भी सवाल ये है कि आज से अगर हम 10 साल पहले देखें तो म्यूजिक वाज लाइक सोलफुल। आज हमारे गानों में से सोल कहीं मिसिंग क्यों फील होती है? मतलब बीट्स बहुत परफेक्ट फील होते हैं, गाना ओवरऑल बहुत परफेक्ट फील होता है, लेकिन ना तो वो बनाया जा सकता है ना याद रखा जा सकता है। व्हाई इज इट हैपनिंग दैट वे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपको यही बता रहा था, जैसे हम लोग बात करें कि रॉकस्टार में गाना है कतिया, तो उसका एक ब्रिज पार्ट आता है, वो लोगों को आज भी जिन्होंने रॉकस्टार नहीं देखी होती और गाना वो सुन रहा होता है ना, तो वो आज भी ढूंढ रहा होता है कि ये गाना, मतलब ये जो पार्ट है किस गाने का है। तो मीनिंगफुल आज भी बनाया जा रहा है, लोगों को पसंद आता है, ऐसी बात नहीं। और दूसरा, हम लोग अभी इंस्टाग्राम के ज़माने में चल रहे हैं, तो लोगों को वो एक पार्ट चाहिए होता है कि हम लोग रील बनाकर कैसे 15 to 30 सेकंड का वो उसमें खत्म हो जाए और हम लोग वायरल हो जाए। राइट, इट वायरल्स डन। ओके, सो म्यूजिक इज स्टिल अलाइव इन अ म्यूजिक एंड इन लिरिक्स बोथ। सो शेजी, अभी आपने सबको सुना, संदीप सर का कहना है लिरिक्स आज भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, अंकित का कहना है म्यूजिक इज स्टिल अलाइव। So you hear all kind of music, okay? Because you are at some place जहाँ पे आपको हर म्यूजिक को सुनने का मौका मिलता है। So आपका क्या सोचना है कि म्यूजिक has more of a emotion or more of a algorithm?
सी अभी करंट म्यूजिक एरा के हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, क्योंकि हम रेगुलर सॉन्ग्स प्ले करते हैं और अलग अलग जॉनर के सॉन्ग्स हम प्ले करते हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही अभी करंट म्यूजिक एरा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है। हालांकि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। एल्गोरिथम की जब आप बात करते हो तो एल्गोरिथम बेसिकली आजकल जो म्यूजिक क्रिएशन है ना उसके लिए सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। यानी स्पॉटिफाई हो गया, गाना, ये जो म्यूजिकल ऐप हुए और हम यहाँ जाते हैं, हमारे फेवरेट गाने सुनते हैं अलग अलग जॉनर्स के, एक लाइब्रेरी हम बना लेते हैं उसमें और हमारे जितने भी फेवरेट सॉन्ग्स हैं उसको हम सेव करके रख लेते हैं। और उसमें सैड सॉन्ग्स होते हैं, हैप्पी, रोमांटिक, डिवोशनल, रीजनल, पंजाबी जैसे भी सॉन्ग्स होते हैं। और आपकी और मेरी तरह ऐसे करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जो इस तरह के गाने सेव कर रहे रख रहे। तो म्यूजिक एजेंसीज जो होती हैं और जो लेबल्स होते हैं वो एक पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, यू नो, आपके प्रेफरेंस ऑफ म्यूजिक के हिसाब से। फिर उस हिसाब से म्यूजिक लेबल्स जो है वो अलग अलग तरह का म्यूजिक क्रिएट करते हैं कि आजकल की जनरेशन क्या सुनना पसंद कर रही है, किस तरह के ऐप पे सबसे ज्यादा क्या सुना जा रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है। गूगल सर्च के माध्यम से हम सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग सर्च करते हैं। दूसरी चीज, एल्गोरिथम रिकमेंडेशन में सबसे ज्यादा एक मेजर पार्ट प्ले करता है। यानी मैं अगर एक सैड सॉन्ग सुनना चाहता हूँ तो मैं गूगल पे लिखूंगा फाइंड आउट द बेस्ट सैड सॉन्ग्स ऑफ 2025 या अरिजीत बेस्ट सॉन्ग्स, तो वो मुझे कुछ चंद गाने दे देगा और मैं उसमें 3-4 सुनूंगा। मैं सुन के हो गया, नॉर्मल हो गया, मेरे एंजाइटी, स्ट्रेस सब चला गया। लेकिन रिकमेंडेशन वहां अपना रोल प्ले करेगा कि आप जब भी मैं अगली बार सोशल मीडिया पे लॉग इन करूंगा या गूगल पे या किसी भी स्ट्रीम का प्लेटफॉर्म, तो वो कहेगा भाई कि आपने सुन रहा है, तू रो रहा हूं मैं तो सुन लिया, ये तो बहुत सैड है, लेकिन कीजिए ये सुनिए, ये और भी ज्यादा आपको मायूस कर देगा या आपकी एक्स भी याद दिला देगा और आपको मजा आ जाएगा। तो वो हेल्प करता है हमें कि और भी अलग अलग तरह के गाने को रिकमेंड करता है जिनसे आप वाकिफ हैं, जिनसे अवेयर हैं। तीसरा, एल्गोरिथम म्यूजिक स्कूल्स के लिए अभी कहते हैं वरदान की तरह, यू नो, एनालिटिक्स, डेटा कलेक्शन, कि आजकल के स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए, एक डेटा पूरा उनके पास होता है। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स क्या चल रहे हैं, आजकल का म्यूजिक क्या क्रिएट हो रहा है, तो उस हिसाब से एल्गोरिथम बहुत इम्पोर्टेंट। तो जहाँ तक इमोशंस की बात है तो मैं ये बता रहा था कि ह्यूमंस के लिए एक सेंट्रल स्टेज होता है इमोशन, और म्यूजिक ऐसा कहा जाता है, इट इवोक्स द इमोशंस ऑफ ह्यूमन। तो हम जब भी किसी गाने को सुनते हैं तो ऑब्वियसली वो गाने या तो हमें हैप्पी कर देता है या सैड या फिर एंग्री कर देता है, और कई बार पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो एकदम जज्बा जगाते हैं। तो पूरा एक इमोशन जो कनेक्ट है वो तो म्यूजिक के साथ परमानेंटली है, यू नो। आप या तो लिरिक्स से कनेक्ट करोगे या उसकी हार्मनी या मेलोडी या फिर उसके साउंड से या बैकग्राउंड से, तो वो इमोशन तो कहीं पर भी नहीं जाता। अब एल्गोरिथम बस ये काम नहीं कर पाता है कि वो आपके इमोशंस को पढ़ के आपके हिसाब से गाने रिकमेंड नहीं करेगा या वैसा कोई गाना बना नहीं पाएगा। यानी मैं सपोज कीजिए मैं थिएटर में एक मूवी देखने गया हूँ और वहां पर एक मूवी में 7 गाने, लेकिन मुझे सिर्फ 2 पसंद आई है क्योंकि मैं इमोशनल कनेक्ट कर जाऊँ। हो सकता है वो लिरिक्स मुझे नॉस्टैल्जिया हिट कर जाए, कुछ याद आ जाए मुझे, कहीं ना कहीं साउंड मुझे कुछ ना कुछ याद दिला दे। तो इसलिए इमोशंस तो मतलब एक पार्ट है म्यूजिक का, और वो कहीं पर भी यू नो कहीं नहीं जाने वाला। और आजकल भी अगर आप देखोगे तो भले ही गाने आते हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं, हम उनकी अगर बात करें तो जो इंस्टाग्राम पे यू नो कई ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनको हम आज सुनने के बाद सीधे पूरा गाना सुनने के लिए दोबारा आते हैं, यार ये हुक पार्ट कहाँ से आया। तो वो बेसिकली इमोशनल पार्ट ही होता है कि हमें वो कहीं ना कहीं हिट कर गया। तो जब तक म्यूजिक है, इमोशन है और एल्गोरिथम बेसिकली आज की डिमांड है, वो तो उसके साथ तो आपको चलना ही पड़ेगा, आप उसको कहीं से भी अवॉइड नहीं कर सकते। It's like that. So algorithm is somewhere helping us to Exactly. hear more wiser music. Exactly. Fast beat, zero feel. Why can't we sing these new songs? So Sagar and Vishal, आप लोग सूफी सिंगिंग में है एंड पहले जो सॉन्ग्स होते थे लाइक 1-2 दिन और लाइक चुम्मा चुम्मा और बहुत सारे लाइक डिस्को डांसर, ये सारे जो सॉन्ग्स होते थे ये भी बहुत फास्ट बीट होते थे, लेकिन फिर भी ये गाए जा सकते थे। आज भी हम सब ये सॉन्ग्स गाते हैं। सो अभी के जो सॉन्ग्स बन रहे हैं, लाइक हमने अभी सबकी बातें सुनी, संदीप सर की एंड शेजी की, अंकित की, दे ऑल आर इनटू द फेवर कि नहीं सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे बन रहे हैं भाई, और लिरिक्स भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। सो व्हाट इज मिसिंग देयर? उनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या मिसिंग है कि आज वो गाने हम गा नहीं सकते हैं जो
वो जो फास्ट बीट म्यूजिक आ रही है? इसमें मैम सबसे पहली बात तो ये है म्यूजिक इज आर्ट दैट इज साउंड विच फॉर योर आइडियाज एंड इमोशंस। तो पुराने सॉन्ग जितने भी थे ओल्ड सॉन्ग्स थे उसमें इमोशंस भी थे, आइडियाज भी थे, लिरिक्स भी अच्छे थे। लेकिन आजकल के जो न्यू सॉन्ग आ रहे हैं उसमें आइडियाज तो नहीं पर इमोशंस नहीं होते जितने पहले हुआ करते थे। सो यू गो इन दैट साइड की इमोशंस कम है म्यूजिक में? जैसे हम देखते हैं अभी बंदिश बैंडिट्स आई है Right. सेकंड राइट, पार्ट हाँ, so very तो beautiful. उसमें जो यूज़ किया है हाँ. आइडियाज को मतलब यूज़ किया है जो जितनी बंदिश है वो थोड़ी अच्छी है। Right, right. बाकी जो आप डांस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीट के हिसाब से हम डांस के हिसाब से इमोशंस जो होते हैं सोलफुल के सॉन्ग होते हैं वो जिसमें लिरिक्स के बिना वो कुछ कंपोजिशन से डिवाइड करते हैं। निशाद, आपको बहुत ज्यादा सूफी फेवर में रहते हैं। आई सीन योर शोज कि आपने सूफी सिंगिंग बहुत की है। सो आज भी अगर जो सूफी या गजल फॉर्मेशंस आते हैं उनके भी स्ट्रक्चर में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक फास्ट बीट रिदम भी डाल दी जाती है। सो व्हाई दे आर डूइंग दिस? एक्चुअली क्या होता है कि मैं सब लोगों से एग्री करता हूँ। ये सब लोगों ने बोला कि पहले भी सॉन्ग्स बनते थे, आज भी मतलब अच्छे सॉन्ग्स बनते हैं। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बनते हैं ठीक है मानता हूँ, लेकिन कुछ सॉन्ग्स पहले के सॉन्ग्स जो लिखे जाते थे, जो राइटर्स होते थे वो जो लिखते थे लाइक जो भी उन्होंने लिखा है उसमें सच में एक इमोशंस होते थे कि उन्होंने जो लिखा है वो चीज़ दिखती थी, फील होता था। आजकल के सॉन्ग्स क्या है कि एक तो बहुत फास्ट मतलब प्रिव्यू हो गए। आजकल में अगर आप बोलो कि हनी सिंह है, बादशाह है, जितने भी लोग सिंगर्स हैं उसमें कुछ ही सिंगर्स ऐसे होंगे जो जिनके सॉन्ग्स जो है हमें याद रहते हैं, बाकी अधिकतर जो हमें याद ही नहीं। बाकी लोग है ना क्या करते हैं बीट पर बस ये हो रहा है वाइब बनी। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि पुरानी चीज़ें जो होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग काफ़ी लोग हैं जो पहले भी लिखते थे आज भी लिखते हैं, लेकिन वो लोग ट्रेंड के साथ जरूर चल रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि ट्रेंड के साथ चलना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस चीज़ को मत छोड़ो जो आपने पहले बहुत सारी चीज़ सीखी। मतलब मैं पुराने सॉन्ग ज़्यादा मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनमें लिरिक्स जो होते थे उनके बहुत मीनिंग्स होते थे, वो डायरेक्टली मतलब हार्ट मतलब लाइक हमारे दिल को छूने वाले गाने। मतलब व्हाट डू यू थिंक कि म्यूजिक आज के डेट में सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से बनाया जा रहा है, ना कि द रियल इमोशन व्हाट ऑडियंस इज सीकिंग फॉर? मेरा मानना बहुत अलग है। मेरा क्या रहता है कि मैं जो चीज़ें पुरानी जो चीज़ें होती थी वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब मायने रखती है, और लोग वही बेस है आपका। अगर आप देखेंगे कि लोग ना कितना ही सीख ले, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि क्लासिकल पहले Of course. तो वो क्लासिकल सीखना क्यों जरूरी है? Without क्योंकि knowing the ABC, you cannot learn any other. ऐसा नहीं कि गाने अच्छे नहीं बनते, गाने आज भी अच्छे बनते हैं। मैं बस क्या है कि मैं बीट्स पे ज़्यादा नहीं जाता, मैं लिरिक्स पे। अभी हम सागर से और विशाल से बात कर रहे थे। विशाल का कहना है कि नहीं यार वाइब बनी रहनी चाहिए, बीट 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 बीट। यू आर डीजे मोहित, आपका काम ही है वाइब मेंटेन करना, बीट। सो आज हमारे म्यूजिक में हम देखते हैं बहुत सारा ड्रॉप है, बेस है, थंब है, बहुत कुछ है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लिरिक्स तो बहुत ज्यादा मिसिंग है। सो व्हाट यू फील कि आप जब प्ले करते हैं डीजे, सो ऑडियंस किस पे ज्यादा वाइब करती है? म्यूजिक पे ज्यादा वाइब करती है या लिरिक्स पे ज्यादा वाइब करती है? बेसिकली ना दोनों अलग अलग जॉनर है। एक है टेक्नो पार्ट में आ जाता है जिसमें बहुत सारी बीट्स होती हैं, और एक है बॉलीवुड पार्ट जिसमें लिरिक्स ज्यादा होते हैं। पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ बॉलीवुड। एवरीवन रिकमेंड बॉलीवुड। मुझे तो यही लगता है, भले सब बात करते हो बीट्स की, म्यूजिक की, लेकिन मुझे भी पर्सनली बॉलीवुड ज्यादा पसंद है, क्योंकि जो वाइब क्रिएट होती है उससे, और जो भी मतलब मुझे क्राउड को पता है कि कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, तो वो सब चीजें मैं बॉलीवुड के थ्रू करता हूँ। तो मतलब यू आर आल्सो इन आवर सर्कल कि यार साउंड्स में और म्यूजिक में लिरिक्स मिसिंग है आज की डेट? थोड़ा बहुत है, बट वही है कि जनरेशन चेंज होती है, वैसे वैसे चीजें चेंज होने लगती है। अब आज से पहले जब आप 90s 80s में जाओगे तो उस टाइम पे लिरिक्स पे ज्यादा जोर डाला जाता था। फिर 2000 में जब हम रॉकस्टार की बात कर रहे हैं, 2000 में फिर जनरेशन गैप आने लगा, चेंज होने लगा, और आज की डेट में ऐसा है कि अब थोड़ा सा बीट्स पे ज्यादा जोर डाला जाता है। बीट्स पहले भी होती है, ऐसा नहीं है, शायद उसे इंटरल्यूड या ऐसा कुछ बोल देता है, तो पहले भी वो होता था, बट वो ऐसा रहता था कि वो परकशन के थ्रू और इन सब के बस मेंटेन करते थे।
अब ऐसा है कि अब उसे ड्रॉप के उसमें यूज करने लगे, अब उसे ड्रॉप पे लेने लग गए, मतलब ऐसा है कि अब उससे वाइब क्रिएट अलग होता है। So as per you, जब आप क्लब में होते हैं तो ऑडियंस बॉलीवुड ज्यादा एंजॉय करते हैं। हाँ मतलब बेसिकली मैं बॉलीवुड की हूँ तो ऑब्वियस सी बात है। Okay, in that way, because आप बॉलीवुड DJ इसलिए you will favor Bollywood और in general। बेसिकली मैं बॉलीवुड हूँ इसलिए मैं बॉलीवुड को फेवर करता हूँ। वैसे आजकल टेक्नो पे बहुत ज्यादा क्राउड शिफ्ट हो रहा है और आई डोंट नो मतलब उन्हें टेक्नो में क्या वाइब बनता है क्या है, बस एक बीट को पकड़ के वो कुछ BPMs पे ले जाते रहते हैं तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी बॉलीवुड मेरा फेवरेट है। So अंकित, अभी डीजे मोहित ने जैसा बताया कि नहीं, एक टेक्नो पे बीट पकड़ के उसी पे लोग लगे रहते हैं। So आपको क्या लगता है कि आज के जो प्रोड्यूसर्स है, एज पर योर थिंकिंग, कि आज के जो प्रोड्यूसर्स है दे आर ऑल्सो मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द बीट्स एंड म्यूजिक रेदर देन ऑन द लिरिक्स, दे आर मोर फोकसिंग ऑन द बीट्स? उसका एक रीज़न यह है, मैंने जैसे एक चीज़ बताई थी इंस्टाग्राम। अभी मैं अगर कोई गाना बनाऊंगा या कोई ऐड जिंगल बनाऊंगा या मेरा के लिए ही कोई चीज़ प्रोड्यूस करूंगा तो मैं पहले ये सोचूंगा कि इंस्टाग्राम पे वो चीज़ वायरल हो जाए जो 15, 20 या 30 सेकंड में मेरा वो सिग्नेचर ट्यून जिसको निमोनिक होता है वो काम कर जाए। और आजकल हम लोग भी रील्स देखते हैं, 2 मिनट 3 मिनट का कोई भी हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, 20-25 सेकंड में उसको ख़त्म हो जाए, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि अगर एक स्ट्रैंजा पे डालना है मेरे को 3 मिनट के अंदर पूरा गाना ख़त्म हो, तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ लिरिक्स भी आ जाए उसमें, तो 3 मिनट में मेरा वो सिग्नेचर ट्यून एक निमोनिक है वो भी काम करता है जो कि वायरल होता है। तो ये एक रीज़न है और ये हर कोई सोचता है। So इसी रीजन की वजह से प्रोड्यूसर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा म्यूजिक की तरफ शिफ्टेड है रेदर देन ऑन द लिरिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आज इट्स लाइक अभी जैसे अंकित ने कहा कि प्रोड्यूसर्स आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स द म्यूजिक साइड रेदर देन ऑन द लिरिक्स। You are somebody who plays songs for the masses. Okay, so what do you think? Why people used to still hum for the old song and they skip and pass the new releases? See, old songs will always remain the old songs. Yeah, they are the उनको आप golden songs. कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। और क्योंकि उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर इमोशनल डेप्थ होता है, तो वो इमोशनल डेप्थ आप नए गानों पे बहुत मुश्किल से ला पाओगे। जैसे मैं आपको पहले एल्गोरिदम वाला जब बता रहा था तब भी मैं आपसे कह रहा था कि आप एल्गोरिदम के थ्रू कोई भी सॉन्ग को इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी सुनते हो, आप शायद हुक सुनोगे, आप इमोशनली कनेक्ट करोगे, आप पूरा गाना सुनोगे, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है कि आप पूरी लिरिक्स जो है पसंद आते हैं। यू नो, जरूरी नहीं कि आप फिर पूरा गाना सुनो। कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ हुक सुनकर ही आनंद ले लेंगे, उतना ही हमें मजा आ रहा है, लेकिन हम पूरा गाना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुराने गानों में जो इमोशनल डेप्थ होती थी, एक ऑथेंटिसिटी होती थी, जो आज के गानों में खत्म होती है। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स अगर आप आज की बात करोगे तो वो इंस्पिरेशनल होते हैं, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर उन्होंने लिया हुआ है या कॉपीड होते हैं या फिर कहीं ना कहीं मिलते जुलते हुए होते हैं। और वो हर रिमिक्स बनाए होते हैं या पुराने शायरियों को पिक किया होता है। शायरी से अगर मैं आपको बात करूँ, सबसे बड़ी चीज पोएटिक जो एक थीम है ओल्ड सॉन्ग्स की, वो हम खो चुके हैं आज के लिरिक्स में और सॉन्ग्स में। एक पोएटिक थॉट हुआ करती थी, यानी कि अगर मैं कौन सा गाना आपको बताऊं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो, कौन लिखता है आज के वक्त में ऐसा? यदि अगर हम ये बात करें थे कि गुलजार साहब भी आज लिख रहे हैं और जावेद साहब भी आज लिख रहे हैं, लेकिन वो अगर लिख भी रहे हैं तो वो उस गाने को कौन डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर म्यूजिक वाला उसको लेके किसी मूवी में डाल रहा है, क्योंकि वो डिमांड ही नहीं बची है। इसीलिए पुराने गाने जो है उनमें इमोशनल डेप्थ हुआ करती थी, उनका एक पोएटिक वे हुआ करता था, कहने का ऑथेंटिसिटी हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात कि जो लिरिकल क्वालिटी थी वो पूरी तरह हम खो चुके हैं। यू नो, मार्केट फोर्सेस अभी जिस तरह से म्यूजिक मार्केट फोर्सेस है वो तो बिल्कुल ही डाइवर्ट हो चुकी है। वो more of a business strategy thing. ट्रेंड सेटिंग, बेसिकली ट्रेंड सेटर्स है अभी के फिलहाल करंट सॉन्ग्स, कि अगर आपको उनको वायरल करना है तो आपको कोई भी 2-4 ऐसे शब्द डालना पड़ेंगे, भले आप उसमें गाली इस्तेमाल करो या फिर आप उसमें कोई भी ऐसा अपबीट सॉन्ग इस्तेमाल करो जिसपे लोग नाचें। Right.
पहले या के उससे सॉन्ग्स मतलब बार बार सुने, कनेक्ट कर ले, एग्जैक्टली, यू नो, क्लब हाउस सॉन्ग्स हो गए, टेक्नो सॉन्ग्स हो गए, इस तरह के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा अब चलने लगे। पहले नहीं होते थे, आप सूदिंग म्यूजिक सुनते थे। आप अगर अभी भी अगर ऐसा होता है कि यू नो आप कहीं अपबीट सॉन्ग सुन के आ रहे हो, तो एंड ऑफ द डे आप जब रात में सोगे तो आपको चाहिए कोई सुकून भरा गाना बना, वो जो आपको सुकून भी दे। और वो गाने जो इमोशनल डेप्थ है, वो कनेक्टिविटी है, वो सब ओल्ड सॉन्ग से लेकर आते हैं। इट्स लाइक मतलब मेरा ये कहना है कि पुराने गानों में भी बहुत फास्ट बीट सॉन्ग्स रहे हैं। राइट। ओके, लाइक अभी जैसे हम बात कर रहे थे, चाहे वो छैया छैया हो, सब वेरी फास्ट बीट सॉन्ग, और वो बहुत ज्यादा ओल्ड भी नहीं। इट्स नॉट कि हम बिल्कुल 90s के दौर में Right. चले गए। इट वाज अंडर द 2000 वाला Right. लेकिन फिर भी वो गाने हम आज गा रहे हैं। आप अगर उसकी साउंड और हार्मनी की बात करोगे तो वो आज के साउंड से बहुत डिफरेंट है। यस, यू नो, वो फास्ट जरूर है, लेकिन वो हर बीट के साथ टूटा हुआ गाना नहीं है। It's a एक rhythmic साउंड song. चल रहा है, ए आर रहमान का एक बहुत यूएसपी है जो बाकी बहुत सारे लोगों ने बाद में फॉलो करा, कि वो एक सॉन्ग साउंड जो शुरू से लेके चलते हैं ना, वो आखिर तक वो पूरा साउंड चलता है, वो कहीं ना कहीं चलता रहेगा। जहाँ पर गाने का एक अंतरा है, मुखड़ा टूट रहा है, या जहाँ पर भी एक शब्द टूट रहा है, तो वहाँ शायद वो ड्रॉप करेंगे, Right. लेकिन वो अगले ही साउंड से वो वापस से सुनना शुरू हो जाएगा। Very- वो सारी चीजें खत्म हो गई। अभी तो जरा में लिरिक्स चेंज होती है तो पूरा म्यूजिक ही चेंज हो जाता है। हाँ, मतलब आप- कट ब्रिज बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, तो वो आप कहाँ से लेके आओगे? और अभी वही है कि अभी पूरा एक जनरेशनल गैप हो गया है। आज की जनरेशन, आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू लिसन। मैं खुद रेडियो, आपको पता है कि मैं खुद आरजे रहा हूँ 12 साल से, लेकिन मैंने जिस तरह से बदलता हुआ देखा है म्यूजिक, मेरे ख्याल से ये बहुत ही वास्ट चेंज है। और अभी के हिसाब से जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, मतलब वो मुश्किल से 15 दिन की उनकी, कहते हैं ना कि एक लाइफ स्पैन है, कि आप उन्हें सुनोगे उसके बाद आप उन्हें याद भी नहीं करना। The shelf life is going quite down and down. एग्जैक्टली। तो वो जनरेशन चेंज होती है, तो मेरे ख्याल से म्यूजिक चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो ओल्ड सॉन्ग्स की वैल्यू है, तो आप हमिंग करते हो, वो आप करते रहो। मिलेनियल्स के लिए तो वही सॉन्ग्स हैं जो बन चुके हैं, पहले बनी वो 60s 70s 80s 90s 2000 तक। तो मतलब आज हम म्यूजिक में टाइम पास नहीं कर पा रहे, मतलब वो जो टाइम टेस्ट है वो आज का म्यूजिक जो है पास नहीं कर पा एग्जैक्टली, रहे। अगर आपको कोर म्यूजिक ढूंढना है तो आपको इमोशनल डेप्थ, पोएटिक थॉट और साथ में एक लिरिकल क्वालिटी लानी ही पड़ेगी। बट एज संदीप सर से जब बात हो रही थी, मतलब आज भी मैं सुनती हूँ, जैसे अभी केसरी मूवी आई, उसमें जो सॉन्ग्स थे, पेट्रोलिज्म जो था बहुत सुपर था, लिरिक्स वाज सो अमेजिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर आज मैं कहूंगी कि कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग गाने के लिए, तो आप केसरी का सॉन्ग नहीं गाएंगे, आप कुछ वो पुराना ही। क्या आप मुझे कोई भी अभी करंट पेट्रियोटिक सॉन्ग गा के बता पाएंगे? कोई भी चंद एक दो लाइंस आपको याद है? अगेन इट विल बी फ्रॉम द वेरी संदेश से आते हैं, अगर मुझे कोई बोलेगा तो हाँ, मेरे right. दिमाग में सबसे पहले वही आएगा, है ना? या फिर मैं और पीछे चला जाऊं तो धर्मेंद्र की एक मूवी आई थी हाँ। जिसमें कर चले हम, हाँ, फिदा कर्मा। जाने तन साथियों, ऐसे कुछ Right. करिए, कर्मा के सॉन्ग, कर्मा के सॉन्ग, वही गाने। ज्यादा से ज्यादा आप ए आर रहमान का वापस से लता मंगेशकर का वही गाना सुनोगे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसके अलावा आपको अभी करंट तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो लिरिकल क्वालिटी, वो साउंड और वो पूरा बैकग्राउंड जो एक पोएटिक वे जो एक बनता है लिरिक्स के थ्रू, वो सब खत्म हो चुका है। अभी की जनरेशन बस चाहती है कि एक गाना है जिसपे वो डांस कर रहे हैं, तो वो एक हाउस पार्टी में बजा लिया जाए, या फिर वो यू नो क्लब हाउस में बज जाए, टेक्नो म्यूजिक के थ्रू एक म्यूजिक साउंड हमें ऐसा मिल जाए कि जिसपे आप नाचते हैं। वो बड़ा मुश्किल हो गया है। सो ऑडियंस, आपके लिए एक सवाल कि अगर अभी कमिंग कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग पे आपको डांस करना हो तो वो कौन सा सॉन्ग होगा? सो संदीप सर, अभी शेजी वाज सेइंग कि कहीं ना कहीं हमारा जो म्यूजिक है उसका लाइफ स्पैन कम हो गया है, उसका लिरिकल पार्ट जो है अब वैसा नहीं बचा है, म्यूजिक अब वैसा नहीं बचा है। सो डू यू फील देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर on the producers and on the composers to make those kind of fast music, fast beat songs बनाने के लिए बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, जिसकी वजह से म्यूजिक का जो सोल है, जो उसका फील है, वो इग्नोर हो जाता है और लिरिकल कॉम्प्रोमाइज होता है एंड बीट जो है वो ओवरटेक कर लेते हैं। सर्टनली देखिए, 2-3 रीजन है। सबसे पहली बात तो ये इंडस्ट्री है, जैसी इंडस्ट्री आती है तो ये बिजनेस है, इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। पहले हम ये कह सकते थे कि फिल्म म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई थीम होती है फिल्म की, उसका एक सब्जेक्ट होता है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उसके हिसाब से गाने बनते हैं। एक ही फिल्म में देखिए आप तरह तरह के गाने होते हैं, एक को आप 7 to 8 songs पूरी तरह से खारिज कर देते हैं
ठीक है, आपने कहा था 1 2 3 की आपने बात की थी, आपको याद है 1 2 3 पता है किसने लिखा है? जावेद अख्तर साहब। राइट। हो सकता है वो क्रिटिसाइज हो गए तो कि जावेद साहब आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बट वो एक अपबीट सॉन्ग था, फिल्म की डिमांड थी उसकी, उसी में सो गया ये जहां भी है, तेजाब में ही, ठीक है। तो एक तो सिचुएशन हो गई, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है, अब जो ट्रेंड है वो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कुछ आ गई है तो सोशल मीडिया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया की है जो कि सोशल मीडिया फॉलो कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि हमें 90s पसंद है, तो एक नॉस्टैल्जिक मेरा वहां से लगाव है। मैं 90s का कोई सॉन्ग सुनता हूँ तो मुझे मेरे स्कूल कॉलेज की कुछ याद आ रही है। प्लस मैंने अगर उसके पहले के गाने सुने तो मेरे मदर फादर जो सुन रहे थे, इसलिए मेरा वहां से भी लगाव हो गया। अब आज अगर कुछ एकदम से बचता है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आज के जो यूथ है उसको रील बनानी है, उसे सोशल मीडिया पर जाना है, उसे पसंद वही आ रहा है, तो प्रोड्यूसर उसी को लेकर के गाने ज्यादा मुझे बनाए। नहीं लगता कि उसे पसंद तो वही आ रहा है, क्योंकि घूम फिर के हमारे जो रिमिक्सेस है वो सारे तो पुराने म्यूजिक से ही उठ के आ रहे हैं। हाँ, तो रिमिक्स की तो वही बात की कि अगर मुझे सुनना है तो मैं ओरिजिनल पे चला जाऊंगा। अब इन्हें अपबीट अगर सुनना है तो ये अपबीट सुन रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पे ज्यादा कहीं ना कहीं ट्रेंड हो रहा है, लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और बहुत बड़ा रेवेन्यू म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को सोशल मीडिया से आ रहा है। So तो it's a business strategy ये बिजनेस है। अब अगर कुछ और अगर बाद में चेंज हो जाता है तो वो बिजनेस वर्ल्ड उसको फॉलो करने लग जाएगा। Remixes versus original, emotions और a shortcut. So आज अभी हम आपसे बात कर रहे थे, अगेन हमने सर से बात की, संदीप सर से, एंड ही केम ऑन कि नहीं रिमिक्सेस बन रहे हैं, अगर मुझे ओरिजिनल सुनना होगा तो आई गो बैक टू द ओरिजिनल, एंड अगर मुझे अपबीट सुनना होगा तो आई गो फॉर द रिमिक्स। सो रिमिक्सेस आर ट्रेंडिंग, वी ऑल नो कि अभी का जनरेशन जो है वो रिमिक्सेस सुन रहा है, बट लिसनर्स क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं? मतलब यू बी टू दैट प्लेस जहाँ पे वी आर प्लेइंग सॉन्ग्स, तो आपको क्या लगता है, इज इट अ नॉस्टैल्जिया और द ब्रांडिंग डूइंग ऑल द थिंग्स? ब्रांडिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि संदीप सर ने भी बताया कि अभी जितने भी मार्केट फोर्सेस हैं वो पूरा आपका ओवरऑल ड्राइव करती है, यानी कि करंट जनरेशन क्या पसंद कर रही है। अभी फिलहाल मार्केट स्ट्रैटेजीज में जैसा उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस आता है, रॉयल्टीज आती है, किसी अगर एक हुक सॉन्ग भी उनका बज रहा है या कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो उसके भी उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन रीमिक्स में कहीं ना कहीं यही है कि जो एक ओरिजिनल डेप्थ है किसी भी म्यूजिक की, उसको पूरी तरह किल कर दिया। अगर आप सिर्फ आज के रिमिक्स की बात करोगे तो वो तो किसी को याद भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा कहते हैं ना कि हाई वोल्टेज साउंड्स हो गए और इतनी बीट्स डाल दी उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या करा है कि एक जो लिरिकल क्वालिटी थी वो भी चेंज कर दी, यानी कि एक छोटा सा स्टैंजा ओरिजिनल सॉन्ग का आएगा, उसके बाद जो शायर है या जो भी लिरिक्स जो भी लिख रहा है गाना, राइटर है, वो अपना अलग ही कुछ नया डाल देगा उसमें, तो वो ओरिजिनल हिस्सा, उसके बाद उसका खुद का हिस्सा, तो वो एक मिक्सचर की तरह हो गया। वो रिमिक्स भी नहीं बचा है आज के वक्त में। अगर आप अच्छे रिमिक्स की बात करें तो शायद आपको 90s 2000 की रिमिक्स याद है, कांटा लगा और चढ़ती जवानी, या फिर ऐश किंग ने बहुत सारे गाने बनाए थे, उन्होंने छोड़ दो आंचल टाइप इस तरह के गाने। तो वो गाने आज भी अगर आप रिमिक्स के तौर पे सुनोगे तो आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और उसका सिंपल सा रीजन ये था कि ब्रांडिंग उस टाइम इतनी नहीं हुई, हाई प्रमोशन होते थे सोशल मीडिया पे हाई, लेकिन उसकी सिंपल सी वजह ये थी कि उन्होंने उसके हार्मनी साउंड सेम रखा, मेलोडी सेम रखी, उन्होंने क्वालिटी ऑफ लिरिक्स बिल्कुल सेम रखे, बस उन्होंने उसको एक क्लब हाउस के तौर पर ढाल दिया, यानी कि उसे किसी भी क्लब में पार्टी में बजा लिया जाए, लेकिन इतना नहीं कि लोग वहां से आवाज आ जाए चिल्लाने की कि यार उसको बंद करा। कहीं ना कहीं ओरिजिनल डेप्थ उन्होंने उसकी मेंटेन की, जो आज के वक्त में खत्म हो गई है, और क्योंकि स्ट्रैटेजीज अब बहुत डिफरेंट हो गई है, तो नॉस्टैल्जिया इज अ न्यू ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। मतलब कोशिश यही करते हैं लोग कि अब जब उनको लगता है कि यू नो एक मूवी में 5-6 सॉन्ग्स हैं, एक पुराना गाना उठा दो जो कि सुना जाता था या चलता है, उसे रिमिक्स कर दो, तो शायद थोड़ा सा एक एड ऑन हो जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी हमारी पूरे, लेकिन ट्रस्ट मी वो बहुत दिन तक मिल सकता है।
हमारे पास भी गाने बजाने को आते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम रेडियो पे उसे बजाते हैं उतनी जल्दी हमें उसे टेक डाउन करना पड़ता है। हाँ, प्लेलिस्ट से आउट एग्जैक्टली, उतनी जल्दी वापस से हमें वहीं घूम फिर के आना पड़ता है कि अगर मैं लास्ट पूरी होल सोल एल्बम की बात करूं तो शायद वो आशिकी 2 की एल्बम थी, जो शायद अभी भी थोड़ी बहुत लोगों को याद होगी, एग्जैक्टली। जिसके गाने बहुत सूदिंग थे, मेलोडियस थे, और कहीं ना कहीं नए सिंगर्स आए थे उसमें, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, और वो अभी भी थोड़ा सा ताज़ा है इसलिए। लेकिन आप किसी भी लिरिक्स की बात करोगे पुराने तो वो आपको याद नहीं है। तम्मा तम्मा भी एक गाना आया था जिसको थोड़ा सा रिमिक्स किया गया, लेकिन वो शुरुआत तम्मा तम्मा के बाद वो कहाँ गया था, इट वाज लाइक द गॉड केस, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। तो वो मोहित भाई के क्लब के लिए बहुत अच्छे गाने हैं। मैं इतना कहूंगा, मतलब अगर मैं उसको बिल्कुल इन अ नटशेल बात करूं तो वो डीजे जो है उनके लिए बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, कैसे उनको एक पूरे मूड को एलिवेट करना है क्लब के अंदर, उसके लिए बेस्ट सॉन्ग्स हैं। लेकिन वो परमानेंट सॉन्ग्स नहीं है जिन्हें आप अपनी लाइब्रेरी में रख के लगातार सुन सकते। वेरी वेल सेड। सो डीजे मोहित, जैसा अभी शैजी ने बताया कि गाने तो आपके लिए ज्यादा बन रहे हैं, सो गाने चाहे वो अभी इन्होंने जैसे बताया कि तम्मा तम्मा जो बना तो सही रिमिक्स, लेकिन कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। लाइक शिफ्ट द क्वेश्चन टुवर्ड्स कि अब एक रिमिक्सिंग जो एक आर्ट है वो एक आर्ट से ज्यादा एक ऐप वर्जन हो गया है। हर कोई आज की डेट में रिमिक्सेस बना सकता है, डीजे बन सकता है विद द एप्स। सो ये डिजिटल टूल्स के साथ अब जो डायलॉग्स है वो भी वायरल हो रहे हैं। लाइक हम सबने सुना होगा इट्स नथिंग लाइक अ वाव, बहुत ट्रेंड हुआ। और अभी लेटेस्ट में एक हंसी तो फंसी का चल रहा है, लेटेस्ट में सेंसेशन पिल्स खाने से, इवन आई मेड अ रील ऑन दैट, पिल्स खाने से मुझे कंट्रोल मिलता है। सो इस वर्ल्ड में जहाँ पे एक डिजिटल ऐप के थ्रू यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, व्हाट डू यू बिलीव कि ये आर्ट सही है या गलत है? बेसिकली मतलब लोग आजकल सब ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखोगे कोई लोग जैसे बहुत ही पुराने ट्रैक्स उठा के ले आते हैं, उस पर रील्स बनाते हैं और वो हिट भी हो जाता है, तो उसे फिर सब लोग फॉलो करते रहते हैं। अब जैसे ये डायलॉग्स वाले आप जो बोल रहे हैं, इसमें भी ऐसा है। अब वो बेसिकली हुआ यही है कि लोग बस उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो भी बहुत अच्छे खासे जो इन्फ्लुएंसर हैं, उसने किसी भी चीज पे एक रील पोस्ट कर दी, लोग उसकी रील देखेंगे, उन्हें वो ट्रैक पसंद आएगा, बस उसी को फॉलो करते चले जाएंगे। बट माय क्वेश्चन इज मोर अबाउट कि अभी जो आपने जब डीजे सीखा होगा तो आपका एक स्किल लगा होगा, एक एफर्ट लगा होगा विद दिस ऐप एंड टूल्स, इस तरह से डायलॉग्स को रिमिक्स कर देना, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है इस इंडस्ट्री में? मतलब जस्टिफाइड तो नहीं है वो चीज, पर ऐसा है कि सब जनरेशन चेंज है, एआई आजकल सब चीजों की जगह ले रहा है, तो बस बात ये है कि चीजें चालू हो जाएंगी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब फालतू चीजें हैं। सो संदीप सर, रिमिक्सिंग कल्चर आया था वही काटा लगा ठहरामा के दौर से, जब हम सब एक्चुअली रिमिक्सिंग करते थे। सो अभी जो रिमिक्सेस है, हर गाना पुराना एक गाना उठाया जाता है, उसका एक रिमिक्स बना दिया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को क्या पसंद आता है, वो पुराने गाने के लिरिक्स, वो बीट्स या इनका कॉम्बिनेशन? ये बस एक विन विन सिचुएशन है मेकर्स के लिए भी, कंपोजर के लिए भी, कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड सॉन्ग है जो कि पहले बहुत सक्सेसफुल रह चुका है, तो हम उसी को फिर से कुछ बीट्स और डालते हैं। हालांकि तम्मा तम्मा तो देखिए बप्पीदा का बनाया हुआ था, बप्पीदा वैसे इनोवेशन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने पूरा डिस्को डांस किया, डिस्को बीट्स का इस्तेमाल किया, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं चल रहा था। वो डिस्को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में, तब उसे भी इन्होंने रिमिक्स कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये सॉन्ग पहले से फेमस है। ऐसे ही ज्यादातर गाने आ रहे हैं कि जो पहले सक्सेसफुल रहे हैं, उनको पता है कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं भी हो, लेकिन ये उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि 100% ट्रेंड में तो आ ही जाएंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी में तो वर्क हो ही जाए, फिर वही बात आ जाती है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द मार्केट। बिल्कुल। सो सागर एंड विशाल, जैसा अभी हमारी बात हो रही थी संदीप सर से, तो उन्होंने कहा कि रिमिक्सेस जो है वो बहुत ही विन विन सिचुएशन है मार्केट के लिए। सो इस फ्लड ऑफ रिमिक्सेस के एरा में कितना मुश्किल है, कितना हार्ड है ओरिजिनल सोलफुल म्यूजिक बनाना और उसे मार्केट में पब्लिश करना, लेकर आना। सो ये कितना टफ है कि ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करेगी और रिमिक्सेस उसको ओवरशैडो नहीं करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, जो सॉन्ग्स बन रहे हैं वो आ तो रहा है मार्केट में, लेकिन जिस तरीके से बनता है उसको हम लोग अगर जैसा आर्टिस्ट हम अगर कहीं परफॉर्म करते हैं तो उसको
शो करने का या पब्लिक क्राउड तक पहुँचाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे लता जी का अगर कोई सॉन्ग, अगर पुराने सॉन्ग की बात करें, जैसे बीघा बीघा ये सॉन्ग मेरा दिल्ली में, तो उसका जो फील है वो सैड है, जैसे सुना सुना है जहाँ, इस तरीके से मतलब फील जा रहा है। लेकिन अगर हम उसको अगर गाएंगे तो कोई बीट बात आगे डांस के लिए सुना सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ, लेकिन उसका फील हमें जो एक्चुअल फील था वो रिदम बीट रिदम बीट पे फील डांस में ले गए सैड सॉन्ग में। लेकिन इस तरीके से अगर उसको करते हैं तो हमें भी मतलब आपको ये मजबूरी में करना पड़ता है, ये कह रहे हैं। ये बहुत लाइक बोल सकते हैं कि आज का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चलना चाहिए, मतलब चलना पड़ता है, और क्योंकि वो मजबूरी है। अगर आप तो क्लासिकल बैकग्राउंड से है, अगर आपको एक ओरिजिनल म्यूजिक बनाना हो, लाइक जैसे आप लोग करते भी हैं अपने ऑडियंस के लिए, आप लोग सूफी सिंगिंग करते हैं, आप अपने खुद के घराने से म्यूजिक लेकर आते हैं जो ओरिजिनली कहीं और नहीं सुना गया होगा, तो वो म्यूजिक को ऑडियंस तक पहुंचाना, कि आपको टफ फील होता है कि ऑडियंस उसको पसंद करेगी या नहीं करेगी ये रिमिक्सेस वर्ल्ड में? कि आजकल का ट्रेंड क्या है कि लोग ज्यादा डीजे बेसिस पे, लाइक ऐसा है कि हर म्यूजिक जो भी चीज है सब लोग पार्टी करने जा रहे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, लाइक कहीं भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक छोटी सी पार्टी रखता हूँ अपने घर में, तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई डीजे आए, जाहिर सी बात है, भले मैं क्लासिकल बैकअप होगा या कुछ भी हो, आप भी अगर चाहोगे तो मतलब अगर आपको लगता है 10 में से कोई एक ही ऐसा होगा जिसको लगता होगा नहीं यार कि मेरे घर में गजल होना चाहिए, या मेरी पार्टी में कोई गजल, बहुत कम ही लोग ऑर्गेनाइज बस। कराते हैं। लेकिन मैं जिन लोगों को इनवाइट करूंगा, मेरा जो सर्कल होगा, वो उस चीज को नहीं करेगा, तो वो चीज क्या होती है ना कि वो लेकिन उस चीज को हम छोड़ते नहीं। जैसे कि कोई हमारे 10 गानों में से 1-2 गाने ऐसे जरूर होते हैं कि जो हम लोग पुराने गाने लेके जरूर गाते हैं, बस बीट चेंज और कुछ बस। सो वानी, अभी हमने बात की क्लासिकल बैकग्राउंड्स के हैं, लेकिन रिमिक्सेस ये भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं म्यूजिक को फास्ट अपबीट कर रहे हैं। सो ओल्ड क्लासिक्स आज के डेट में रिमिक्स होके आ रहे हैं, जहाँ पे जो उनके आलाप्स हैं वो कट हो रहे हैं, मुर्कियाँ गॉन, ओके, जो उनका फील या ठहराव था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो आपको कैसा फील होता है व्हेन यू हियर दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, बिकॉज यू आर सच अ ट्रेंड पर्सनालिटी, जब आपने इतने साल सिंगिंग को दिए हैं, तो जब आप इस तरह से देखते हैं कि म्यूजिक की जो स्किल्स है वो रिप्लेस हो रही है बाय अ क्विक इंस्टा फ्रेंडली म्यूजिक के साथ, हाउ डू यू फील? प्रेजेंट सिनेरियो में बोलूंगी कि मैं बुरा फील नहीं कर रही हूँ। कह सकती हूँ उसके कुछ टाइम पहले जैसे बीच में बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया था, बिकॉज मार्केट में टोटली बॉलीवुड म्यूजिक ने ही कैप्चर कर दिया था, और काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ही एक चेंज आया था, जो आपने जैसे बोला कि मेरेटिव मिसिंग है सब कुछ। बट अब मैं इसलिए इतना बुरा फील नहीं कर रही, बिकॉज चीज़ें वापस बैक टू द सेम पॉइंट आने लगी हैं जैसे पहले थी। बीच में बहुत गायब हो गई थी चीज़ें, बट अब क्या हो रहा है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, शायद ने बताया कि हमें जिस टाइप का सुनना है हम कर सकते हैं। अब हमारे पास इतने सारे एप्पल म्यूजिक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इंस्टा, मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पे जो अच्छी चीज़ है, जो जैसे हमें जिस टाइप का पसंद है, क्या हो गया, जो वो म्यूजिक भी बन रहे हैं और लोग लिमिटेड मतलब बहुत लिमिटेड सेटेड एरिया तक ही है, डोंट यू फील दैट? लिमिटेड सेक्टर तक ही है, बिकॉज जैसे इन्होंने भी बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट भी बदल रहा है। मुझे लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर जो ज़्यादा आप सर्व कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादा चलने लगती है। अगर मैं अपना कहूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं बहुत गंदा लगा मुझे गाना, बट वो इतनी बार मुझे कान में सुनाई पड़ गया, इतनी बार वो प्ले किया जा रहा है कि मैं वो गुनगुना भी लगी, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इट्स लाइक कि, और कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंसर वाली भी बात होगी कि पर्टिकुलरली वो गाना जबरदस्ती वायरल करवाया जा रहा है जबकि हो नहीं रहा है, राइट। एंड जैसे जो म्यूजिशियंस की बात करें तो म्यूजिशियंस हर टाइप के गाने सुन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब है तो नहीं सुन रहे, खराब भी वो कहीं ना कहीं सुन ही रहा है, बट जो एक नॉर्मल ऑडियंस है वो ही ज्यादा सुन रहा है, जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो समय वापस आ गया है और चीजें वापस रीगेन कर रही है, जितना जो चीजें एलिमिनेट हो गई थी वापस कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, स्पेशली मूवीज बनने लग गई है, अलग से बहुत अच्छे अच्छे एल्बम्स बनने लगे, तो इट्स कमिंग बैक। सो कहीं ना कहीं जो हमारा रिमिक्सेस कल्चर है उसके साथ हमारा वापस से ओरिजिनल म्यूजिक भी कम बैक करने लगा। एल्बम
singles, the storytelling and the journey in the music is still alive or it's gone. So अंकित, आप एक म्यूजिक साउंड इंजीनियर हैं, आप म्यूजिक एडिटर हैं, आप कंपोजिंग भी करते हैं. सो हैव यू फेल्ट कि आज की डेट में जो म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है वो एल्बम से ज्यादा सिंगल हिट्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है? मतलब पहले पूरी एक जर्नी होती थी, एक एल्बम पूरा ना एक पैकेज होता था कि उसमें हर टाइप का एक इमोशन होगा, लेकिन आज हम सिर्फ एक सिंगल म्यूजिक जो हिट हो जाए, वायरल हो जाए, इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो क्या आपको भी फील होता है कि इस तरह से मार्केट जो है वो शिफ्ट हो चुका है और एल्बम्स अब नहीं बचे? जी, अगर हम बॉलीवुड की अगर बात करें, स्टोरी लाइनअप और एक हर इमोशन के हिसाब से जो एल्बम बन के आती है, गाने बन के आते हैं, तो वो एक चीज़ अलग हो गई. और मुझे एक कुछ अलग क्रिएट करना है. सपोज हम 5 मिलकर 5 गाने हम लोगों को बनाना है, 2 महीने का टाइम. हम लोग पांचों ने सोचा है कि इन 2 महीने में 5 गाने का आउटपुट निकालना, इसकी बजाय किसी एक गाने पे हम लोग पांचों एक साथ काम करें तो शायद वो 15-20 दिन में हम लोग एक हिट सॉन्ग बना सकते हैं. और पांचों की मेहनत एक पे लगेगी तो शायद वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और जो टाइम का रहता है, हम लोगों के पास टाइम कम रहता है मार्केट में जल्दी हिट होना या फिर वायरल होना, होड़ लगी हुई है वायरल होने की. तो ज्यादा फोकस अभी मेरे हिसाब से लोग यही कर रहे हैं कि कम गाने निकाले, मतलब वही वाला हो गया कि कम खाएं अच्छा खाएं वाला. ओके. तो अभी कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि हम लोग कम गाने बनाएं या छोटा गाना बनाएं, लेकिन वो ऐसा बनाएं कि वो वायरल सॉन्ग. राइट. सो हम आज की डेट में लाइक यू एग्री टू दिस पॉइंट कि कहीं ना कहीं हम जर्नी ऑफ म्यूजिक से ज्यादा हिट ऑफ द मतलब कितना वो वायरल या हिट हो सकता है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर. सो वानी, अभी जैसे अंकित ने कहा कि हम कम गाने बनाए पर मोर वायरल जो हो सके, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा वायरल से लिंक होती हो, सिंक्रोनाइज होती हो, वैसे गाने बनाए. सो क्लासिकल एल्बम्स जैसे पहले बनते थे, उसमें बहुत सारे राग्स होते थे, मूड्स होते थे, थीम्स होती थी, ओके, एक कंप्लीट पैकेज होता था. लेकिन 90s हमने देखा है कि कितने अच्छे एल्बम्स आए. अगर हम कंटेम्पररी एल्बम्स की बात करें, दीवाना आया था सोनू निगम का, सो उनमें एक पूरी जर्नी होती थी, एक पूरी स्टोरी टेलिंग होती थी, हर गाने को लेके कंप्लीट पैकेज फॉर्म होता था. सो आज आपको लगता है कि सिंगल्स जो बन रहे हैं, जो सिंगल्स म्यूजिक बन रहे हैं, उसमें ये पैकेज मिसिंग है या वो पूरे इस पैकेज को एक ही गाने में डाल देते हैं? जैसे अपनी ज्यादा फ्रीडम मिल गई है कि आप एक जस्ट एक क्लिक अवे है कि हमने कुछ बनाया, हमने कंटेंट अपलोड किया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किया. तो अब जैसे कि आप क्लासिक एल्बम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखा जाए हमारे ट्रैक्स में, तो एल्बम्स आए थे और उसका बहुत अच्छा टाइम चला था. अगर आप अर्ली 2000 में भी देखें और कुछ 2000 की टाइम अच्छा खासा चला, बहुत ही प्रोग्रेसिव म्यूजिक था और वीडियोस के साथ ऑडियो वीडियो दोनों ही काफी प्रोग्रेसिव है. और आज भी हम उनको सुने तो बहुत फ्रेश साउंड करेंगे. स्टिल वो नहीं लगेगा कि इस बात को 20-25 साल हो गए. बट अब वो बीच में बॉलीवुड म्यूजिक ने टोटली टेक ओवर कर दिया था, वो तो गायब ही हो गया म्यूजिक एल्बम है. बट नाउ मैंने जैसे आपको कहा कि जो चीजें छूट गई थी कि वापस फिर से धीरे धीरे आ रही है और वापस आने में धीरे धीरे टाइम लगता है, बट चीजें भी हो रही है और अभी आ रही है वापस. जैसे आपने पर्टिकुलर थीम बोला, राग बोले आपने, और जो एक स्टोरी टेलिंग है, जो एक प्रॉपरली जो हर चीज एक इंक्लूड होनी चाहिए एल्बम में. क्योंकि बीच में क्या था, मोनोपोली थी, सिर्फ कुछ आर्टिस्ट थी और वही मोनोपोली में ही वो कुछ आर्टिस्ट ही चलते रहते थे. अब जब फ्रीडम मिल गई है कि हम अपना कंटेंट इतने सारे अलग अलग जगह पे डाल सकते हैं और लोग इतनी सारी जगहों से एक्सेस कर सकते हैं, तो अब वो लिबर्टी मिली आर्टिस्ट को कि वो जो उसके दिमाग में था बहुत अच्छा कंटेंट वो लोग तक अपना रख पाता है. तो वो चीज में काफी है. सो हम ये उम्मीद करें कि अभी जो कमिंग जनरेशन है वो नए एल्बम्स और एक स्टोरी जर्नी भी लेकर आएगी. जी बिल्कुल. कुछ आ भी नहीं है, भले उसे बहुत ज्यादा एक वेटेज नहीं मिला है, बट वो डेफिनेटली अच्छी चीजें बाहर निकल के आएगी. टाइम जरूर लेता है बट श्योर. सो Ajit, डू यू सी एनी डिमांड फॉर एल्बम्स आज की जनरेशन के साथ? डू यू फील कि एल्बम्स के लिए अभी भी डिमांड आ रही है या फिर सिंगल्स आर द ओनली पैटर्न टू गो हेड और दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म? Well, I think सिंगल्स अगर आ भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है. हाँ. और एल्बम्स नहीं भी आ रही है तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है.
ओके यू नो अभी मोनेटाइजेशन का बहुत ज्यादा एक डोमिनेंस है. YouTube is playing a very crucial role. तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, खासतौर से अगर हम इंडिया आर्टिस्ट की बात करें, अगर 90s और 2000 की बात करें तो उसके बाद अगर रिवॉल्यूशन वापस से आया इंडी म्यूजिक के अंदर तो वो 2015 के बाद आया राइट या कोविड के बाद अगर आप कहो एकदम से यू नो लोगों को मौका मिला गाने लिखने का. तो उन्होंने बहुत सारे गाने बनाए. लोग बोर हुए बहुत सारे घर में बैठ के, जिनके पास कोई काम नहीं था. ऐसे में वापस से कहते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है वापस से इंडी म्यूजिक का. और इंडी म्यूजिक ने कहीं बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सिंगल ट्रैक्स के लिए भी, एल्बम्स के लिए भी. आप अनुव जैन के एल्बम सुनो, यू नो वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव. उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिन्होंने एल्बम्स के थ्रू निकाले उन्होंने. प्रतीक क्वाड इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट बहुत सेलिब्रेटेड है राइट. इसके अलावा मुस्तफा कबाड़ी वाले हैं. इस बहुत सारे एंड नंबर ऑफ इंडिया आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. But are they making up to the playlist of radios? They are exactly. वही मैं कह रहा हूँ आपसे, इनके लिए बकायदा शो क्रिएट करना पड़ा. जैसे मैं रेड एफएम से आता हूँ तो हमने एक पूरा शो क्रिएट किया रेड इंडी शफल करके 3 साल पहले, क्योंकि कोविड के दौरान इतने सारे गाने बने और वो यूट्यूब पे उन्होंने डाले थे. यूट्यूब पे चलना शुरू हुए, लोगों ने सुने और वो इतने ज्यादा मेलोडियस थे या इतने ज्यादा अच्छे थे कि वो कहीं ना कहीं लोगों ने रिपीटेड वर्जन मिलियंस में व्यूज गए. राइट. उसके बाद हमने एक शो क्रिएट किया बकायदा रेड इंडी शफल करके नाम के, और हमने उसे 36 मार्केट में चलाया हिंदुस्तान के. अब उसमें हमने क्या कि छोटी छोटी जगह से जो इंडिया आर्टिस्ट थे हमने उनको भी मौका दिया कि आपका कोई गाना है आप बना रहे हो, आप सिर्फ हमें भेजो, वो अगर उसकी लिरिकल क्वालिटी या फिर साउंड अच्छा है तो हम उसे बढ़िया सा एक्सपोजर देंगे. और हम 36 शहरों में बजाए हैं हम. वहां से कितने सारे आर्टिस्ट निकल के आए. भोपाल के कितने सारे आर्टिस्ट थे, बाहर के कितने सारे आर्टिस्ट थे. और अब ये हो गया है कि अगर मतलब 10-12 गाने बज रहे हैं तो पंजाबी जो सॉन्ग्स हैं वो बेसिकली वो सिंगल सॉन्ग्स ही है, सिंगल ट्रैक्स ही है. या फिर अगर अनुव जैन का कोई एल्बम आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो वो सिंगल ट्रैक निकाल रहा है. प्रतीक क्वाड सिंगल ट्रैक निकाल रहा है. या और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं लाइक द शैडो एंड ऑल जो उन्होंने निकाला है. बहुत सारे. तो मतलब ये हो गया है अभी के उस इंडी म्यूजिक की वजह से सोलो ट्रैक्स भी पॉपुलर हो गए लोगों के पास. उनकी अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी में वो गाने सेव हैं, उनके फेवरेट सिंगर्स बन गए. और सबसे बड़ी बात जो अभी वानी ने बोला कि एक मोनोपोली थी, यू नो कहीं ना कहीं कुछ चंद आर्टिस्ट थे या फिर लेवल से उन्हीं से गवा देते, उन्हीं से काम करवा देते. यूट्यूब की वजह से या फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, गाना हो गए और भी दूसरे, उनकी वजह से इन आर्टिस्ट को मौका मिला है कि वो अपने सिंगल ट्रैक्स डाल पा रहे हैं. वरना वो आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे, फिल्म्स में यूज नहीं होंगे obviously. और पैकेजिंग ऑफ अ एंटायर एल्बम इज वेरी हाई. अब ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी पर्सनली मैंने इंटरव्यू किए, जिसमें वही आर्टिस्ट ने लिखा है, उसी ने गाया है, उसी ने कंपोज किया है, यहाँ तक कि म्यूजिक भी उसी ने दिया है. और उसके साथ कोई नहीं है, सिंगल हैंडेडली उसने, और वो गाना सुपर हिट हुआ है. जो मिलियंस में 4-4, 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज उसके. काफी साल पहले एम्प्टीनेस जो आया था एग्जैक्टली यही से आया था. बहुत सारे यू नो बैंड्स हैं, रॉक बैंड्स हैं, म्यूजिक बैंड्स हैं, साथ ही सोलो आर्टिस्ट हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जरूरत नहीं है कि एल्बम सॉन्ग्स आए तो ही सेलिब्रेट की जाए. एक सिंगल गाना भी बहुत हल्ला कर देता है. जैसे अभी 2 गाने बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा. एक तो झोल है और एक पल पल है. ये दोनों गाने हल्ला मचाए हुए, और ये वो गाने जिनको मैंने सिर्फ शायद हुक सॉन्ग सुना होगा रील के ऊपर ट्रेंड होते हुए, बट मैंने उनको पूरा सुना. और इत्तेफाक से इनमें से एक गाना रेड एफएम खुद बजा रहा था, जिसे मैंने नहीं सुना, झोल भानु का. लेकिन मैंने नहीं सुना था क्योंकि मुझे लगा ठीक है, मतलब अच्छा गाना है. लेकिन उसका एक हुक पार्ट मैंने वहां सुना, सिंगल ट्रैक, और वो आके मैंने वापस की तो मैं खुद बजा रहा हूँ, मैं उसको क्यों नहीं सुन रहा हूँ. फिर पूरा गाना मैंने वो सुना. तो सिंगल ट्रैक्स आर रियली वर्किंग. और अगर एल्बम आ जाए तो भी लोग सुनते, लेकिन एल्बम मतलब आप अगर बॉलीवुड सिंगर्स नहीं गा रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि वो एल्बम हिट. जब तक वो म्यूजिक में नहीं आएगा, वो बॉलीवुड में नहीं आएगा, मूवी में नहीं आएगा, तब तक एल्बम के चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सुनने के चांसेस मतलब उसका दोनों के लिए अच्छे. ओके. सो संदीप सर, जैसे अभी शेजी कह रहे हैं कि सिंगल्स के लिए भी मार्केट अच्छा है एंड एल्बम्स के लिए भी. फिर जो शफल वर्ल्ड है, प्लेलिस्ट वर्ल्ड जो है, यहाँ पे एल्बम्स मैटर भी करते हैं या सिर्फ ये एक एग्रेसिव मार्केटिंग है जहाँ पे सिंगल्स हिट करा दिए जाए और एक अच्छा बिजनेस टर्नओवर कर लिया जाए? देखिए, सिंगल्स अभी शायद आज की जरूरत है, एंड इट इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन दैट सिंगल्स आर कमिंग अप.
और मुझे लगता है कि ये फिर से एल्बम का दौर जरूर आएगा और ये आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा बहुत पॉजिटिव वे है क्योंकि सबको मौके नहीं मिल रहे हैं, देखिए, है ना सिर्फ न्यूकमर्स को मौके नहीं मिल रहे हैं। पहले लोग क्या होते थे कि एल्बम्स के लिए, सिंगल्स के लिए भी डिपेंड करते थे कि कोई कंपनी को रिलीज करे। राइट। अभी बंदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, वो यूट्यूब पर जा सकता है, गाने में दम है तो वो चलेगा, वो फिर उसे कोई कंपनी मतलब उसे लेबल करे या ना करे। चलिए हम आपको मौका देते हैं, फिर कोई बड़ी कंपनी आ सकती है, क्योंकि यहाँ देखिए उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है और ये हमेशा हर इंडस्ट्री में होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर आपका गाना अच्छा है तो आपको कोई कंपनी पिक कर सकती है और आपको ऑफर कर सकती है कि हम एक पूरा एल्बम आपका करते हैं। फिर आप उसी दौर पे चले जाएंगे कि एक एल्बम की अगर कोई थीम होती है या नहीं होती है। अगर एल्बम की थीम होना भी जरूरी नहीं, देखिए उसमें अलग अलग तरीके के गाने भी हो सकते हैं और ये बहुत बड़ा फ्रीडम है ना सिर्फ न्यूकमर्स के लिए। अभी तो स्टैब्लिश आर्टिस्ट भी खुद जो स्टैब्लिश हो गए वो अपना लेवल ही लॉन्च कर रहे हैं, वो और बड़े बड़े लोगों ने कर दिया है ना। एन नंबर्स ऑफ सिंगर्स एंड कंपोजर्स जो अपना खुद का म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर दिया उन्होंने, कि उनको किसी कंपनी की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, किसी ब्रांड की तरफ नहीं जाना, और वो वहाँ खुद अपने मन का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। वो किसी सिचुएशन में गुलाम नहीं है कि उनको फिल्म म्यूजिक नहीं चाहिए। We are in that transit वाला लूप में जहाँ पे सिंगल से हम वापस एल्बम्स की तरफ आएंगे। क्योंकि देखिए म्यूजिक ना हमारे यहाँ फिल्म की जान रहा है, सोच रहा है, लेकिन आप शुरू से अगर ये देखें तो हॉलीवुड में दोनों अलग चीज है, मूवी अलग है, म्यूजिक अलग है। हमारे यहाँ वहाँ हमेशा से वहाँ आर्टिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट अलग अपने एल्बम के जरिए ही लोगों के और मुझे लगता है कि वो मूवी स्टार से भी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन इन द पंजाबी म्यूजिक द कल्चर इज एज सेम एज द हॉलीवुड कि वहाँ पे मूवी एक अलग जरिया है एंड एल्बम आर्टिस्ट एल्बम इज अ डिफरेंट। जो फिल्म मेकर्स है ना जो कि बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है या वर्ल्ड सिनेमा से इंस्पायर्ड है, वो भी ऐसा मानते हैं कि यार हमको डिमांड होती है कि गाने डालना है, लेकिन उससे मेरी कहानी रुकती है कहीं ना कहीं। सीरियस फिल्म मेकर भी ये चाहता है कि गाने अलग कर लो ना भाई, तो ये कभी ना कभी आ जाएगा और इससे दोनों चीजों की क्वालिटी अच्छी होगी और उससे सबको फायदा। Again, marketing strategy is working in that way only. सो रंगीला ब्रदर्स, अभी सर ने कहा कि मार्केट इज ओपन फॉर ऑल, शेजी भी कह रहे हैं मार्केट इज ओपन फॉर ऑल, एल्बम्स भी चल रहे हैं, सिंगल्स भी चल रहे हैं, बट यू बीइंग एन आर्टिस्ट व्हाट इज योर लाइकिंग टुवर्ड्स, मतलब आज का जो कल्चर चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है जहाँ सिंगल हिट्स बहुत इजीली अप्रोचेबल है, सो आप एक एल्बम निकालने में ज्यादा बिलीव करेंगे और द मार्केट स्ट्रेटजीज हैज शिफ्टेड योर माइंडसेट आल्सो? आप कोई कंपोज करते हो किसी सॉन्ग तो आपको ये पता चल जाता है कि आपने कोई सॉन्ग पर्टिकुलर सॉन्ग कंपोज किया तो उसका मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी अगर आप प्रमोशन करते हैं, कितना तक। पहले अगर एल्बम की बात अगर हम करते हैं तो कुछ 6 to 7 सॉन्ग्स होते थे, उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपके पूरे सॉन्ग से, उसमें पर्टिकुलर एक सॉन्ग ऐसा होता था जो चलना ही चलना है। ऐसा होता है कितनी भी एल्बम्स अगर हम देखें और अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अमाउंट इतना हो जाता है एल्बम ये, मतलब जो आर्टिस्ट होता है वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता। सो इट इज मच प्रेफरेबल कि हम सिंगल हिट्स पे ज्यादा वर्किंग करें। सो इट इज इजी फॉर यू टू कि क्रिएट, आप उसमें ही अपना पूरा स्टोरी ड्रिवन और राग्स और सब कुछ को कंपाइल अप करके एक म्यूजिक के साथ ही वर्क करें। एक सिंगल टेक पे काम करना ही मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट होगा, क्योंकि एल्बम में काफ़ी एल्बम्स ऐसे होते हैं उनकी 6 to 7 की जगह भी 10 सॉन्ग्स भी होते हैं, जैसे कि मिलियनेयर अभी यो हनी सिंह का, तो उसमें क्या है कि उन्होंने क्या किया कि 10-12 गाने एक साथ ले लिए, उनके पास इतना है, लोग इतना जो अभी जो सच में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी जो सिंगर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, आर्टिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इतना उनके पास इतना नहीं, वो उनके लिए इतना अफोर्ड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बेसिकली इश्यूज तो क्रिएट करते हैं। प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सबके पास है, मतलब सोशल मीडिया मतलब इतना फ्रैंक है, मतलब सब चीज़ है, तो आप वहाँ पर भी जाकर मतलब सिंगल एक ट्रैक कर सकते हो और उस पर ही इतना काम करो कि आप उसके 1-2 मिनट 3 मिनट के गाने के अंदर आपका सभी चीज़ आ जाए। वो तो कहीं ना कहीं हम वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी को एक 3 मिनट के दायरे में ही डालने की कोशिश कर रहे हैं। So we came into our fun reality check segment, the ultimate music roast. So DJ boy, name one remix that should have stayed buried. कभी बनना ही नहीं चाहिए था, what you believe? ऐसा कौन सा म्यूजिक है?
मेरे नसीब में मेरे नसीब. Really? But that was a nice remix, by the way. Like, you are a DJ. Okay, you don't like that remix actually. But so Sagar, अगर आज के दौर की अंताक्षरी खेली जाए तो कोई ऐसे कौन से सॉन्ग्स होंगे जो हम 2 लाइन से ज्यादा गा सकेंगे? ऐसे कितने ही सॉन्ग होंगे? ओल्ड सॉन्ग्स की अगर बात करें तो काफ़ी सॉन्ग्स याद हैं बाकी अभी जस्ट आज के दौर की हाँ बात जी है. बाकी न्यू सॉन्ग्स की अगर बात करेंगे तो दो क्या एक लाइन भी पूरी नहीं हो पाई. एक लाइन भी पूरी नहीं हो पाएगी यार. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना. यू पीपल आर सिंगर, आप तो हमेशा गा रहे हो. एक्चुअली क्या कुछ सॉन्ग जैसे जमाल कुडू जो आया वो आज तक मुझे कंप्लीट नहीं है. Okay. So, विशाल, so be honest, क्या आपने कभी कोई से ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को सबके बीच में कहा है कि हाँ मुझे भी ये सॉन्ग पसंद है, जबकि आपको वो सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है? You did that? Yeah. And और किससे किया है? You also did that. It's like, तो कौन सा सॉन्ग था वो? गाया भी है. और गाया भी है? अच्छा प्लीज वो सॉन्ग कौन सा है? ये जमाल कुडू. Okay, this song is actually trending, I feel like. Okay. So, next song. If you could dedicate one song to today's music industry, वो कौन सा song होगा? कोई सा भी सॉन्ग आप डेडिकेट करेंगे अगर आज की म्यूजिक इंडस्ट्री में? बहुत प्रॉब्लम है नहीं. No, it's like it could be a good or a bad, whatever you feel like. Not getting actually कि क्या कहना चाहिए. I'll dedicate ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो मुझे जाना है. Okay, where don't ask that. ये मैं डेडिकेट Every song is about the evening music nowadays. What I believe कि आज की इंडस्ट्री में कि मतलब okay the day is off now I want to be in some club or somewhere where I can ये be लॉजिक myself. लगा Okay, so which remix shocked you in a good or a bad way? कोई भी, like either it could be a good impact on you or a bad impact on you. अच्छा सिला दिया पीता. इसका भी रिमिक्स आया है? I mean seriously. वो मतलब मैं 1.5 मिनट के बाद उसको सुन नहीं सकता. मुझे वापस आपने सोनू 1.5 निगम मिनट का- सुना, मैं इस बार के लिए क्लैपिंग करना चाहती हूँ. सीरियसली Seriously. बहुत बड़ी बात होती है. ओके डन. मेरा अगला सवाल वैसे आपने यही जवाब दे दिया. सो वानी, which song lyrics made you Google it? मैं तो आई थिंक गूगल करती हूँ, मुझे आधे गाने नहीं समझ आते इस इंडस्ट्री में आजकल. तो मैं यूजुअली सारे टाइप की सुनती हूँ, तो मे बी स्पेसिफिकली जो हिंदी नहीं है आई गेस, या वो पंजाबी हो गया या भोजपुरी एक बार मैंने सर्च किया था और वो लिरिक्स देख के मैं भोजपुरी बेहोश हो आपने गई. सुना? मतलब वो यहाँ चल रहा है. डोंट टेल मी कि वो रेडियो में भी आ गए प्लीज. इतनी हिम्मत नहीं अभी चलते हैं. वो पवन का जो गाना है स्ट्रीट उठाओ दैट इज बहुत सॉन्ग. मतलब दैट इज अ लिमिटेड पार्ट. लिमिटेड पार्ट ऑफ दैट. अगर एक पूरा भोजपुरी सॉन्ग बजाना बहुत गट्स का काम है. ट्रेंड करके आए सचिन जिगर ने फिर से उनको उसी तरह का एक और गाना दे दी जो मैंने कल ही वाह, ये सैल्यूट करने वाली बात है. उसी तरह का जिसमें पूरा ऑडियो ट्यून ऐसे ऐसे ही हो रहा है पूरा गाना. प्लीज टेल पीपल कि यहाँ पे ये सॉन्ग कितना वायरल हो सकता है. ओके सो शेजी, अ वायरल ट्रेंड साउंड दैट मेड यू से ये भी गाना है. ये भी गाना है. हाँ. ऐसा कोई गाना तो आई हैव नॉट कम अक्रॉस टिल नाउ. Okay. So any 90s or early 2000s song which you want to bring back as it is and not with so much of remixing? I want to bring back the whole Divana album, you know, Sonu Nigam का. Sonu Nigam. हाँ, I don't know, I am very deeply connected to that. क्योंकि Every- उस टाइम पे I had a Yeah, Walkman, I so I believe used to every just, 90s kid will connect you know, to वो that. कैसेट वॉकमैन में डाला, हेडफोन्स लगाए और बस आने के बाद स्कूल से सुन रहे हैं बस. वो सुन रहे हैं. सुन रहे हैं. तो वो मैं चाहता हूँ वो एल्बम वापस से आए. अब रिमिक्स ना हो, हाँ. सोनू निगम उसे वापस गाए, थोड़ा सा कॉम्पोजिशन अलग कर दे बस और कुछ. Wow.
प्लीज सोनू निगम सर, वी रियली लव यू सो मच। हमारी जिंदगी में आपका बहुत बड़ा पार्ट है, तो अगर आप ये कर सके सो डेफिनेटली। यस, थैंक यू। So, Sandeep sir, the question for you is, name one remix that should have stayed buried. एनी सॉन्ग ऑफ पंचम दा, मतलब ये हिमाकत है कि पंचम दा का आप कोई गाना उठा रहे हैं या किसी लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर का गाना उठा रहे हैं और उसको आप कहते हैं कि ये मैंने उसको रिक्रिएट किया है। हाँ, ये recreate is like cheaters. It is something like that. I really believe कि मतलब उसमें आपने एक डिजिटल हाई बीट म्यूजिक का एक जो मतलब कहते हैं एक ब्रेक आप ऐड कर दे रहे हैं पूरे सॉन्ग पे, एंड यू आर सेइंग कि इट्स अ रिक्रिएशन। हाँ, कह रहे हैं कि ये मेरा रिक्रिएशन नहीं है, मेरे का कुछ पार्ट है, सिर्फ ओरिजिनल आप क्रेडिट दे रहे हैं छोटा सा, हाँ जी। और पूरा आप बड़ा ऊपर खुद अपना नाम लिख रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। True. We really love you, Panchanta. हाँ, और बिंदु शाह साहब का भी कोई गाना नहीं आ सकता। Okay, one more. Any other in the list? मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं ना, आप कुछ करते हैं तो अपना आप ही बना उसमें यार, आप यू आर फ्री टू गो। लेकिन this is something else. अभी आप कह रहे थे मुझे remixes भी पसंद है, and I'm comfortable with every kind of music. और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं legendaries, कोई अच्छा म्यूजिक गाने तो सिर्फ legendaries ने ही बनाए हैं भाई। हाँ, ऐसे हाँ, मतलब every song is made by some बहुत सारे लोग legendary. ऐसे बना रहे हैं जो मैं कह सकता हूँ म्यूजिक में सही गाने से गुस्सा हो गए। ये रिमिक्स क्यों कर दिया? वो मैं मूवी का गाना था। हाँ, हम because क्योंकि वो अपने आप में एक high beat energy song है हम, so it's like अब वो अभी आपने जैसा कहा था कि रिमिक्स का ही रिमिक्स, so वो क्या रिमिक्स है या क्या है, we don't understand that. So are we dancing to the music or just the noise dressed up as a beat? So I left this question to all of you. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये आप बताइए. But my final take is music isn't just about the beats or the rhythms or the trends. It's about what touches you. Whether it's a beat or a ballad, it should touch your heart. It should not be like how viral it can go, but how long it can stay in your heart. So this is the final wrap up from my side. I hope you like the show. Stay connected with Let's Be Real with Simran, and hope to bring more new content for all of you. Thank you.